I used to ask, "Are we shooting today?" Yeah, we'll shoot. So that's how they shoot in Kolkata. Very relaxed, very relaxed. So जब हमने शुरू किया था तब दिस पीटर मुखर्जी वॉज नॉट इवन अरेस्टेड एंड हाफ द थिंग्स जो हुआ वो तब हुआ नहीं था। तो जब हमने ये फिल्म बनाए उसके बाद जैसे फिल्म में है लगभग वैसे ही जो अनफोल्ड हुआ रियल लाइफ में वो फिल्म के हिसाब से ही अनफोल्ड हुआ। बट देन हिज लॉयर्स एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट इट। तो इतना मिखाइल के जो ये था संजू मेरे खास करके मेरे बहुत अच्छे दोस्त था, वन ऑफ द अक्यूज्ड। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट आई थिंक 20 years if not more, and he was a very close kind of a friend. We kept meeting in parties. तो he was a very known person. तो उनका जो कैरेक्टर जो उनसे जो इंस्पायर्ड है that was very easy to deal with. Indrani I met only once through him, so I don't know much about that character from which Mahima's character is inspired. But हाँ ये जो जितने हम लोग देखे बात किया है उनके दोस्तों से, शीना के दोस्तों से बात किया, हर क्लासमेट, सो वी गॉट अ पिक्चर। बट आखिर ये फिल्म है और ये फिक्शन है, ये तो एकदम डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो उसमें अपने जो वर्जन है वही है। अभी उसके बेटे को फंसा रही है, इस तरह का ट्रेलर में दिखाया गया, इस तरह का हुआ नहीं है। Do you not think this is a misreporting? I'll tell you this. The same question was raised by Peter Mukherjee in the court. So they said that if this film is released, then the people, the CBI, the court, the judiciary, they will get influenced by the film. ये जो आपके सवाल है, तो कोर्ट ने क्या बताया? कोर्ट ने बताया तो फिर आप एक पिक्चर ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे लाइट में दिखाता है, एंड फिर यू थिंक द कोर्ट एंड द जुडिशरी एंड इवन द मीडिया इज सो पोरस कि एक पिक्चर देख के दे विल फॉर्म एन ओपिनियन। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ ट्रू थिंग। डिस्क्लेमर डालेंगे स्टार्टिंग में? हाँ जी एकदम है। पुट अ बिग डिस्क्लेमर। यस सर, एकदम। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन which is based on a true life incident. Okay, Mahima, what was your first reaction the moment the makers of this film approached you for the role of yours? What was your first reaction? About the character, you said it's a Yeah. very dark character. yeah, and he was asking कि आपका verdict क्या है? तो it's not about so much about the verdict. Even the audience is not going to, I think, pass a verdict or pass an opinion about this. It's just those incidents which led probably to this most talked about horror story that happened. So it is what situations must have happened. What is your mind going through? What is the mother feeling? What made her do it? Or what made somebody else do it? Whoever did it. What could have happened? What led them to it? For me, I don't think so. Anything can lead any mother to, kill her child. We've read about female infanticide always in India. Newspapers में अभी भी राजस्थान में एक कुआं है जहाँ पे बच्चियाँ होती थी उनको मार देते थे. We've heard about honor killings. This was none of that, so it was shocking. It's not that mothers have not killed their daughters before. They have. They've got their daughters killed. Even in Punjab, Rajasthan, Haryana. But this was one where there was a lot of mystery, and that's why I think the film, because of the mystery. So my whole reaction was that you think she really did, and should I play a character like this where there seems to be no reason? Everything looks so nice. It's a beautiful world. Everything is fantastic. You're rich, you're famous, and still there's a murder of a beautiful daughter. You think I should do it? And then he says yes. महिमा जी, सबसे पहले तो आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। डार्क चॉकलेट किस तरह का कैरेक्टर, एज वी नो दिस इज ए ट्रू स्टोरी, ट्रू इंसिडेंट, तो कुछ बताएं अपने। डार्क चॉकलेट एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। जो शीना बोरा मर्डर केस हुआ था, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर, और मेरा कैरेक्टर शीना की मदर का है, एंड आई प्ले द कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय इंद्रानी। और क्या बोलूँ, मेरी फर्स्ट बंगाली फिल्म है और एक्साइटिंग मोमेंट है। तो जैसे आपने कहा आपकी फर्स्ट बंगाली फिल्म है, तो आपने बंगाली कुछ सीखी है? और नहीं, मैं एक्चुअली मेरी पैदाइशी, मैं हूँ पंजाबी जाट, लेकिन मेरी पैदाइशी बंगाल में हुई, तो मैं बंगाली बोल लेती हूँ। और
मतलब डायरेक्टर के हिसाब से मेरी बंगाली काफ़ी फ्लुएंट है। जैसे आपने कहा ट्रू इंसिडेंट है, तो हाँ। ये कैरेक्टर प्ले करने से पहले आप कोई जैसे तैयारी बोलते हैं तो आपने नहीं, कोई तैयारी नहीं, क्योंकि जब अग्निदा जो डायरेक्टर हैं जब मुझसे मिले तो मैंने कहा ओके, ये फिल्म है मतलब वेरी डिफरेंट कैरेक्टर और ठीक है, तो गिव मी 2-3 मंथ्स टू प्रिपेयर। तो उन्होंने बोला नहीं, 2-3 दिन में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तब ये केस शुरू ही मतलब अनफोल्ड होना शुरू ही हुआ था। मतलब अगस्त में न्यूज़पेपर हेडलाइंस हुई और सितंबर में हमने फिल्म शुरू की। तो ही सेज़ नहीं, मैं इसको सितंबर में ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये फ़िल्म 1 महीने में ही बनी एंड उसी दौरान बनी और कोई टाइम नहीं था प्रेपरेशन का। एंड ही सेज़ ऐसा ये तुम्हारी बॉलीवुड फिल्म नहीं है जहाँ पे तुम्हें कुछ प्रिपेयर करना है, एंड जैसे तुम हो वैसे ही मतलब नॉर्मल मैं दिखाना चाहता हूँ, और सडनली आपकी ज़िंदगी में ये हादसा हो जाता है। तो इट शुड बी रिलेटेबल कैरेक्टर। जैसे हमें जमान आपने लॉन्ग ब्रेक के बाद ऐसी एक स्क्रिप्ट जिस पे काम करना आपको रिस्की नहीं लगता है? मतलब नहीं, एक ट्रू मुझे- इंसिडेंट कंट्रोवर्शियल से पूरी मैं जब पहले फिल्म्स कर रही थी तब मैं बहुत सोचा करती थी, तब मैं बहुत सोचती। अब मुझे अगर मुझे डायरेक्टर अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ वो संभाल लेंगे और उनका नैरेटिव अच्छा होगा, कैरेक्टर अच्छा है, तो आई जस्ट फेल कंफर्टेबल। और मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाए तो मैं फिल्म कर लेती हूँ। मुझे आप टाइम दे दो तो फिर मेरे को जिटर्स होते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये मेरा अभी एक फोबिया है हाँ करने का। लॉन्ग ब्रेक क्या हम सोचे यू स्टार्ट योर करियर अगेन आई डोंट नो माई सेल्फ। कोई मुझे आए फिल्म बोले कि ये 10 दिन में शुरू हो रही है और मुझे टाइम नहीं दे सोचने का, तो शायद मैं कर लूँगी। सोचने का टाइम जहाँ मुझे मिल गया फिर मैं सोचने लगती हूँ। नहीं ज़्यादा आता है दिमाग में, हाँ नहीं आता, पता नहीं क्यों। आई थिंक इट्स अ फेज दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई होप आई कम आउट ऑफ इट। हु इज योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड राइट नाउ या actress, I can tell you, I like Deepika, I like Alia Bhatt, I like all of them actually. इन They're एक्टर एक्टर में रणवीर सिंह अच्छा लगता है। आई थिंक उसकी एनर्जी बहुत कमाल की है। एंड मिस्टर बच्चन तो ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग सम अमेजिंग वर्क। अभी तक तो जितनी मैंने पिछली 10-15 फिल्में देखी हैं वो सब बायोपिक। अभी रुस्तम ऑल्सो इज बायोपिक, या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी फ़िलहाल जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ पिछले 5 साल में, जितनी भी मैंने बुक्स उठाई हैं, पहले मैं बहुत फिक्शन पढ़ती थी बट नाउ इट्स मोस्टली ऑटोबायोग्राफीज़, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मोर देन फिक्शन। पहले जॉन ग्रिशम एंड कोर्टरूम ड्रामाज, मिस्ट्री, लव स्टोरीज, यू नो वो पेनी नॉवेल्स जो एक दिन में ख़त्म कर लेते थे आप, लव स्टोरीज, उसका ज़माना गया। अब मैं ज़्यादातर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ही पढ़ती हूँ। टेल एवरीवन दैट प्लीज़ वॉच डार्क चॉकलेट और आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। आपने ट्रेलर देखा है, हमसे आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे। सर मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने पूरी पिक्चर देखी है और ट्रेलर मैंने आज देखा है, लेकिन मैंने पूरी फिल्म देखी है। और ये केस कंट्रोवर्शियल है या नहीं, इसका वर्डिक्ट क्या आएगा, ये सब मुझे नहीं पता, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। प्लॉट तो इंट्रीगिंग है ही, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आज भी ये लोग जो बोलते हैं कि अभी भी दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इंद्रानी ने शायद अपनी बच्ची को मारा है, लेकिन हमें क्या पता है वो, अभी तो सब वर्डिक्ट कोई नहीं आया है, अभी सारा देयर ऑल कंजेंक्चर्स। और जब तक वो चलता है, ये वो प्लॉट का जो मज़ा है वो जीवित रहेगा। तो आई थिंक द टाइमिंग ऑफ द फिल्म इज़ वेरी गुड। डार्क चॉकलेट आई थॉट वाज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग टाइटल ऑल्सो। लेकिन द फ्लिप साइड इज़ कि जब आप किसी को एक सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ पे देखने का जो मज़ा आता है एक हीरो को या हीरोइन को, वो छोटे पर्दे पे कभी हो ही नहीं सकता। सिल्वर स्क्रीन विल ऑलवेज रिमेन द सिल्वर स्क्रीन। और इसीलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई अच्छी फिल्म करें। इतना अच्छा टेलीविज़न किया, लेकिन फिर भी एक लालसा रहती है। मैं इसको हमेशा वो कहता हूँ कि टेलीविज़न इज़ लाइक रणजी ट्रॉफी, फिल्म्स इज़ लाइक प्लेइंग फॉर इंडिया। ये कौन है इसके पीछे एक अच्छे कहानी बन सकता है। आज ये जो इतने एक घिनौनी एक अपराध है ये सोसाइटी में हो रहा है, और जितने दिन जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है। अब 10 साल पहले, 20 साल पहले इतने नहीं थे। तो कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर मुझे ये लगा कि कहीं एक हमारे कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए, हमारे कुछ रिएक्शन होना चाहिए, हमारे हम क्या कर सकते हैं। हम तो इसके एज सच रियल लाइफ में तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो थ्रू माय फिल्म्स मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ मेरे कहना है, तो वही इसीलिए शायद ये फिल्म। तो कितना मुश्किल रहा सर आपके लिए सर इस कहानी को पर्दे पर उतारना?
ये बहुत मुश्किल एक फ़िल्म थी क्योंकि हम जिस टाइप की फ़िल्म बनाते हैं, सोशल फ़िल्म्स बनाते हैं, रिलेशनशिप फ़िल्म्स बनाते हैं, तो उससे ये एकदम हटकर थे। फर्स्ट जब पहले मुझे लगा कि ये फ़िल्म नहीं बनानी चाहिए बिकॉज़ आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। मेरे बीवी ने भी बोला कि आई डोंट थिंक यू शुड मेक दिस फिल्म बिकॉज इट्स सच अ नेस्टी सब्जेक्ट। मैंने कैसे इसके ऊपर आप फिल्म बनाओगे? तो मैं बोला मैं लिखता हूँ पहले। लिखने के बाद मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में फ़िल्म बन सकता है और ये फ़िल्म ऐसे कुछ होगा कि दर्शक इनको देखना चाहेंगे। वो पढ़ के अगर मुझे लगा तब हम ये फ़िल्म बनाते हैं। तो जब हमने वन लाइनर किया था तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे कि एक डिटेक्टिव स्टोरी होता है उसी हिसाब से ये स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है। और जो सबसे माने अनकैनी थिंग थे कि जब हमने वन लाइनर बनाया उसके बाद बहुत सारे घटना घट रहे थे रियल लाइफ में और सारे जैसा मिल रहा था। तो एक टाइम में तो मुझे ये भी डर लगने लगा कि ये फिल्म अगर उस दौरान रिलीज़ हो जाते तो ऐसा लगता कि मुझे कुछ अंदर की बात मालूम था और आई एम इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट बिकॉज एकदम बहुत सिमिलरिटीज़ आ गया था। आपने ये सब दिखाया है आपने क्योंकि इसके अंदर कहीं पॉलिटिशियन से भी दबाव था, तो क्या आपने ये दिखाया एक सजेशन है क्योंकि मेरे पास डेफिनेट जानकारी तो है नहीं कि इनके पीछे एग्जैक्टली कितने पॉलिटिकल प्रेशर हैं और ये जो जितना हमको रिपोर्टिंग में मिला हमारे इन्वेस्टिगेशन में मिला। मुंबई पुलिस कमिश्नर हाँ, की हाँ मैं जी, बात करूँ हाँ तो जी। उनको दिखाया गया, हाँ लास्ट उनको रीइंस्टेट किया गया था, हाँ जी, हाँ तो जी। वो दिखाया गया, हाँ जी, वो दिखाया गया, हाँ दिखाया गया। गया। और सजेशन है हाँ। कि है प्रेशर किसी का है। हाँ। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, जब मर्डर एक हुआ, मोटिव क्या है? मोटिव है एक बड़े अमाउंट की मनी। कहीं एक पैसा है, जो पैसा कहाँ गया है, किसका पैसा है, किसके पास से ये पैसा इन व्यक्तियों के पास आए हैं और अब फ़िलहाल ये पैसा कहाँ है? क्योंकि ये सारी चीज़ जितना हमारे पास जो जानकारी है इस इंसिडेंट के कि इसके पीछे एक बहुत बड़े पैसा है छुपा, तो उसी को हमने यहाँ पर एक लाइक अ मोटिव दिखाया गया है और उसी वो किसका पैसा है ये इस जानने के लिए पिक्चर देखना है। तो ये एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि आपने ये मुंबई कमिश्नर का रीइंस्टेट किया है और प्रेशराइज दिखाया है आपने। हाँ जी। थैंक यू।